So, hello everyone, and welcome to the question and answer session for statutory audit domain. If you are a person who is looking to get a job into a statutory audit, or those who want to pursue your articleship or want to build your career into statutory audit, this session and this video is for you. In this video, we are going to be discussing the real life practical questions which are going to be asked in the interview and how you're going to be answering the same. Right? Whatever files which are going to be shown in this lecture are there in the description. So do not forget to check the description and do not forget to check the I button where we have created a separate and detailed playlist for all the questions which are there. Now, one of the favorite question which is going to be asked in interview, and that is, what are the major red flags which you will identify, which you will see when you're going to be auditing the balance sheet item? So they might give you different balance sheet item which are there. Either it can be inventory, or it can be cash and cash equivalent, or it can be borrowings, right? कुछ भी आपको दे सकते हैं. Regarding that, they are going to be asking you कि आप उसके red flag कैसे निकालोगे. So you guys need to be smart enough to identify it. I'm going to be explaining you for one of the item how you can do it. Plus also I'm going to be sharing one of the very interesting file where we have explained and shown everything regarding that कि कौन-कौन से red flags हो सकते हैं. तो ये गुरु बंदर है और गुरु बांड है आपके इंटरव्यू के लिए जो आपको हेल्प करेगा to get into the good companies or a big fours or a top firms which you're going to be targeting out. Now let me give you a broad explanation regarding inventory के inventory में how you will identify or what all things can lead to a red flag. So this is going to be very important discussion, and this notes you can able to or you will be able to download it out. कहाँ से? Description में link मिलेगा वहां से. सबसे पहला काम what you need to do whenever you're going to be doing this, right? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा regarding assertion map regarding red flags, तो what you need to do, you need to map and think what all assertions are there. उस चीज के रिगार्डिंग के आपको assertions देना है. तो से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट आइटम की, तो वी आर अवेयर ऑफ कि व्हाट ऑल assertions आर मैप्ड रिलेटेड टू द बैलेंस शीट. व्हाट आर assertions? इट इज नथिंग व्हाट आर चेक पॉइंट. देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस, राइट. देन होता है आपका कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, and presentation and disclosure. These are the major assertions mapped to a balance sheet item. अब सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंस की. तो इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स और हाउ यू विल आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स व्हेन यू आर गोइंग टू बी ऑडिटिंग द इन्वेंटरी. अब भैया देखो, इन्वेंटरी का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर विच वी डू अ फिजिकल काउंट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इन योर आर्टिकलशिप और विल बी डूइंग. तो मुझे पता होना चाहिए कि जितनी इन्वेंटरी इज लाइंग विद अस, राइट, शुड बी देयर इन द बुक्स. टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट. फ्लोर टू शीट, शीट टू फ्लोर. मान लो ये मेरा शीट है, राइट. यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है कि इतनी इतनी इन्वेंट्री डली हुई है, राइट. इतनी इतनी इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इस शीट में जितनी इन्वेंट्री है उतनी क्या फ्लोर में है क्या, और जितनी फ्लोर में है क्या उतनी शीट में दिख रही है, मतलब डेटाबेस में है कि नहीं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू चेक कि whether the inventory is there, right, we are going to be doing the physical verification. Existence बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रेड फ्लैग कैसा है कि यार जो मैंने इन्वेंटरी देखा वो था ही नहीं, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है? हाँ जी, मेरे लिए एक रेड फ्लैग है. दूसरा कंप्लीटनेस. यार कंप्लीटनेस नहीं है, राइट. से फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है. अब मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया बट स्टिल इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, राइट. तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है. तो कंप्लीट चीजें कंप्लीट नहीं है. चीजें जो इन्वेंट्री है वो वैल्यू नहीं है. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, राइट. मेथड ऑफ वैल्यूएशन गलत लगा के रखा है कंपनी ने, राइट. बड़ा मेथड ऑफ वैल्यूएशन दे आर गोना बी चेंजिंग इट आउट. तो दिस इज अगेन सम ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट, इन्वेंट्री लाइंग है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी इज इन्वेंट्री लाइंग विद अस, उसको भी हम काउंट कर रहे हैं कि मेरा है, राइट. तो ये भी बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कौन कौन से हमारे, राइट, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं रिलेटेड टू इन्वेंट्री. सबसे पहला, सडन डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल. हो सकता है कि भाई एकदम से इन्वेंटरी कैसे कम हो रही है तुम्हारी, राइट. अब जनरली आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑडिट, हम लोग एक इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं विच इज अ टर्नओवर रेशियो, राइट. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसका फॉर्मूला पता है, बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो विच इज देयर, क्योंकि मुझे पता पड़ना चाहिए कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कंसिस्टेंट है. एक सेकंड को मैं आपको दिखाता हूं कोई कंपनी का स्क्रीन शेयर करके. एक सेकंड दीजिए. तो मैंने क्या किया है, मैं गया स्क्रीनर पे, राइट. आई हैव गॉन टू स्क्रीनर एंड मैं इस पे अब आपको एमआरएफ का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखाता हूं, राइट. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखाता हूं. ये डेटर डेज, डेटर पेबल डेज, एक सेकंड जो यहाँ पे होगा, ये रहा इन्वेंट्री डेज, राइट. इन्वेंट्री डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर.
ना वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप देखो कि ये रेशियो मेरे को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मैंने देखा कि इन्वेंट्री मोटा मोटी मेरे पास कितने दिन की लाई कर रही है, वो मुझे इस रेशियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूं कि यार देखो यहाँ पे 88 था और एकदम से 113 हुआ, तो क्यों भाई इतना इन्वेंट्री से लोग बढ़ा रहे, राइट? इन्वेंट्री डेज को क्यों ज्यादा हो रहा है? तो यू शुड हैव दिस क्वेश्चनिंग माइंड, दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू टू जनरेट व्हाट अ रेड फ्लैग। आपको एक रेड फ्लैग मिलेगा इस चीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, इन्वेंट्री श्रिंकिंग, राइट? काफी बार क्या होता है कि कंपनीज ऐसे स्लो मूविंग गुड्स अपने पास रख लेती है जो बिकते ही नहीं है, राइट? उसके लिए क्या प्रॉपर प्रोविजनिंग हो रही है कि नहीं? अगर वो नहीं हो रहा है तो वो भी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अ फिजिकल काउंट एंड रिकॉर्ड्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्लोर टू शीट, शीट टू फ्लोर। ऑब्सोलेट इन्वेंट्री, होल्डिंग अ लार्ज लेन ऑफ ऑब्सोलेट स्टॉक विदाउट अ प्रॉपर राइट डाउन्स, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तो बेसिक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम इन्वेंट्री गेट से अंदर आती है ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ दिस, इसको इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज अ थ्री वे मैच, राइट? व्हाट इज अ थ्री वे मैच, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है विच इज गोना बी आस्क्ड, नथिंग बट व्हाट, पीओ, राइट, GRN एंड इनवॉइस। इसमें हमें मैच करना होता है द क्वांटिटी विच इज गोना बी देयर, कि भाई जितना क्वांटिटी में मैंने ऑर्डर किया था, क्या उतने क्वांटिटी में गुड्स आया और क्या उतने क्वांटिटी का ही बिलिंग हुआ है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने 100 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, क्या वेयर हाउस में या फैक्ट्री में 100 प्रोडक्ट आए और क्या बिलिंग 100 का ही हुआ क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या जो प्राइसिंग बोली गई थी पीओ में, वही प्राइसिंग की मुझे इनवॉइस आई है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो दिस इज गोना बी अ थ्री वे मैच, जो कि पता होना चाहिए, और इंटरव्यू में अगर आप ये बोलोगे, इंटरव्यूअर हो जाएगा खुश। नेक्स्ट, आपका यूज ऑफ अ लीफो, राइट? मेथड चेंज होना, यस, अब इंडियस में तो लीफो अलाउड नहीं है, बट यस, मेथड ऑफ वैल्यूएशन चेंज करने से बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, राइट? एक मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कि कैसे आप मेथड ऑफ वैल्यूएशन या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ये भी एक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, नॉट रिकॉर्डिंग द लाइबिलिटीज फॉर द गुड रिसीव्ड, है ना? अब से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गुड्स आ गए, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्यों? बचाना चाहता हूं यार, कॉस्ट बचाना चाहता हूं, लाइबिलिटी कम दिखाना चाहता हूं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट, तो ये सब चीजें हो सकता है। इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, अब से फॉर एग्जांपल ये भी बहुत इशू होता है कि से फॉर एग्जांपल सेल हो गया, कट ऑफ इश्यूज यहां पे भी आ सकता है, राइट? सेल हो गया तो हमने क्या बोला कि देखो भाई, सेल को हमने दो तरीके से हो सकता है, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। ठीक है, सेल हो गया बट मैंने उसको सेल दिखाया नहीं, तो गुड्स पड़े हुए हैं। और दूसरा, सेल पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कि गुड्स रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब होने वाला था? जब मेरा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, बट डिस्पैच पे ही मैंने उसको बोल दिया सेल हो गया। आई होप यू गेटिंग इट। तो ये इन्वेंट्री में ही सब खेल हो रहा है, तो दैट इज गोना बी देयर। वैल्यूएशन एट हायर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम वैल्यू करते हैं, तो यहां पे भी इन्होंने दिक्कत कर दी, तो दिस इज गोना बी देयर। नेक्स्ट, रैपिड चेंजेस इन इन्वेंट्री मेथड, ये मैंने बता दिया। अनयूजुअल इन्वेंट्री राइट ऑफ, काफी बार होता है कि इन्वेंट्री को एकदम कटाकट राइट ऑफ हो रहा है। और आई डोंट नो हाउ मेनी अवेयर ऑफ दिस, इन्वेंट्री का एक एजिंग भी हमें बनाना बहुत जरूरी होता है। वी शुड नो द प्रॉपर विंटेज एंड द एजिंग ऑफ इन्वेंट्री, राइट? अगर इन्वेंट्री बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग है तो प्रॉपर प्रोविजनिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब रेड फ्लैग्स है, एंड इफ यू कुड हाईलाइट दिस इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यूअर विल बी रियली हैप्पी विच इज देयर। इसके अलावा मैंने बैलेंस शीट के जो भी मेजर मेजर आइटम्स है उस सभी के रिलेटेड मैंने रेड फ्लैग्स डाल दिए हैं, जैसे कि पीपीई, फिर आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आ गया इन्वेंट्री, ठीक है, फिर आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, राइट? एक 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, बट ये डॉक्यूमेंट से ऑलमोस्ट एवरी सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ है ना आप चीजें प्रैक्टिकली भी सीखो, तो इसलिए क्या है कि आपको अगर चीजें प्रैक्टिकली सीखना है तो सिंपल काम करना, हमारे वेबसाइट पे जाना, मास्टर क्लास देखना स्टैट्यूटरी ऑडिट का। यहाँ पे वी हैव कवर्ड एवरीथिंग विच इज देयर विच इज नीडेड टू क्रैक एन इंटरव्यू इन अ प्रैक्टिकल मैनर, बहुत ही आलिशान तरीके से इसको समझाया गया है, राइट? और हर चीज के लिए प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये चीजें बताई गई है, राइट? तो प्लीज आप देखिए, और इसके साथ साथ काफी सारे हम इंटरव्यू क्वेश्चन और सीरीज डालने वाले हैं स्टार्ट ऑडिट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, कर लो, एंड बढ़िया से आप इंटरव्यूज की तैयारी कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू चेक द लिंक फॉर द फाइल इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द फाइनेंस कम्युनिटी, जहां पे हम बहुत सारे अपडेट्स रिलेटेड टू जॉब इंटरव्यूज हम डालते रहते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए।